Northeast. Ask yourself, how many have visited Northeast so far? If you have not visited, you ask your parents. How many of your parents has visited Northeast? If somebody cannot afford, that is different issue. But you ask yourself, just like talking is not enough. If you really love Northeast, you ask yourself, you ask your brothers, sisters, you ask your parents, how many of you have visited Northeast? आप लोग का कितना का how many of you know about how many states are there in Northeast and what are their capital? You can learn geography better by visiting places, not from geography book or sociology book. Visit करना बहुत जरूरी है to create bonding between different section of the people. भारत का सबसे बड़ा ताकत है the most strength in India, our country Bharat, our biggest strength is our unity in diversity. No state in our country is asking for independence. That is very good. We may be quarreling amongst ourselves. But no state, tell me any state who wants to be separated from our country, Bharat. Nobody wants to separate. Northeast also, no state wants to be separated from rest of India. Why that is happening? And that is happening because mutual respect. We respect each other culture and language. And her bhasha, every language in India, we have 22 in the constitution, but we have hundreds of languages across the country. मान लीजिए हर लैंग्वेज इंडिया पे है, सबको इक्वल सम्मान दीजिए, जैसे हिंदी को हम मानता है राष्ट्रभाषा, इसके लिए बोलिए सभी लैंग्वेज इंडिया में राष्ट्रभाषा ही है. लेकिन प्रैक्टिस में क्या करेंगे? English may not be our national language, but still we use. It is necessary, जरूरत है. तो हिंदी तो है स्टेटस, लेकिन फिर भी आप लोग का मन पे ऐसा होना पड़ेगा जो each language in the country is our language. And each culture is our culture, not Rajasthan culture alone is Indian culture or Bharatiya Sanskriti. नॉर्थ ईस्ट में जितना कल्चर है ये भी आप लोग का ही कल्चर है. ये मान जब तक होगा म्यूचुअल रेस्पेक्ट, इसलिए तो हम दैट इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ हमारा देश पे है. इन आवर कंट्री दैट इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ, म्यूचुअल रेस्पेक्ट. इसको कंटिन्यू करना चाहिए. ठीक है. सो इन नॉर्थ ईस्ट के बारे में इनिशियली 7 स्टेट था. इसका 7 स्टेट के ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम अरुणाचल, मेघालय एंड आसाम, अरुणाचल मेघालय ये दोनों आसाम का ही डिस्ट्रिक्ट है. मिजोरम, अरुणाचल एंड मेघालय, these 3 were district of Assam. It was called Greater Assam. असम के डिस्ट्रिक्ट था. बाद में मेघालय दूसरा स्टेट बना, मिजोरम दूसरा स्टेट बना, अरुणाचल दूसरा स्टेट बना. और बाकी त्रिपुरा और मणिपुर थोड़ा हिस्ट्री थोड़ा अलग है, ये आप लोग पढ़ लीजिए हिस्ट्री में, बोलना नहीं. लेकिन मिजोरम was Lusai Hill district in Assam. Meghalaya was there. Originally Assam capital, now Guwahati. Meghalaya, Shillong was the capital of Greater Assam. And अरुणाचल नेफा बोलता था, वो भी असम का ही डिस्ट्रिक्ट था. इट वाज ए डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम. व्हाई आई एम ब्रिंगिंग वेरी ब्रीफली ऑन दैट. एंड होल नॉर्थ ईस्ट 7 स्टेट. बाद में सिक्किम को जोड़ा रिसेंटली, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल पे जोड़ा, थोड़ा पॉलिसी ऑल दिस फाइनेंशियल हेल्प के लिए. लेकिन पहले से 7 ही है. हम बोलता है, हमको बोलता है 7 सिस्टर्स. Okay, 7 sisters in the northeast. Now, how many of you know that all the 7 states is connected with rest of
mainland India, we call the rest of India, in the near West Bengal. West Bengal in the mainland India. Lekin northeast and West Bengal is connected with a narrow strip of land that is only 79 or 80 kilometer only. Very narrow strip. डाउन पे साउथ पे बांग्लादेश है और नॉर्थ पे भूटान ऐसा कुछ है, ठीक है। तो ओनली वेरी नैरो स्ट्रिप, होल इंडिया नॉर्थ ईस्ट 79 है ना। सो एक आप लोग का मालूम है जरूर होगा 1962 में जब चाइनीज एग्रेशन हुआ था नॉर्थ ईस्ट पे, चाइना का साथ भारत का जो लड़ाई हुआ था, देयर वाज एन वॉर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। Chinese people came up to Arunachal. At that time it was part of Assam. So you can say they took over a part of Assam during 1962 war. उस टाइम के जब चाइना के साथ हमारा आर्मी हार गया, इसके समय भूपेन हजारिका बहुत गीत लिखा था, हमारा इंडियन आर्मी थोड़ा हार गया लगता है, नहीं तो प्रधानमंत्री उस टाइम के प्रधानमंत्री क्यों बोलेगा हम दुख से बोलना चाहता हूँ, बाय बाय नॉर्थ ईस्ट, हम आपको सेव नहीं कर पाया। सो ये बहुत हमको बहुत दुख देता है, हार्ट करता है। जब होल नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया वांट टू बी विथ मेनलैंड ऑफ इंडिया, क्यों ये देश के प्रधानमंत्री ऐसा बोलना है, उसको लड़ाई करना चाहिए। अब जैसे पाकिस्तान से साथ लड़ाई हुआ, ऐसा ताकत से लड़ाई करना है। पीएम को बोलना चाहिए था, होगा हम थोड़ा टेम्पोरली हार गया लेकिन हमको जरूर फाइट करना, फाइट बैक टू रिगेन नॉर्थ ईस्ट। ऐसा बोला कि नहीं, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट नहीं, बता नहीं, लेकिन मैं जब तक जानता हूँ प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं बोला था। प्राइम मिनिस्टर उस टाइम बोला था बाय बाय नॉर्थ ईस्ट, तो चाइना का छोड़ दिया। मेरा भी आप लोग जुबा से क्वेश्चन है, अभी भी थोड़ा सा ऐसा कॉन्स्पिरेसी चल रहा है, मुझे लगता है। आई एम शेयरिंग माई फीलिंग, I don't know the data, I don't know the politics, I don't know the what is going on internally. मुझे तो लगता है जो 79 किलोमीटर बांग्लादेश और भूटान के बीच, मैं तो सुनता है प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन बांग्लादेश is making some pact with America backing or China backing. They want to occupy the 70 small strip of land and want to snatch away the whole northeast, to take the revenge of separation of Bangladesh from Pakistan. पाकिस्तान भी उनका साथ जोड़ दिया, तो पाकिस्तान भी अभी पाकिस्तान और बांग्लादेश का पता है, वो था पाकिस्तान, बांग्लादेश था ईस्ट पाकिस्तान। आप लोग का पता नहीं, हमको पूरा पता है, वो तो यू आर वेरी यंग। बांग्लादेश वाज ईस्ट पाकिस्तान, वो भी तो पाकिस्तान है वेस्ट पाकिस्तान, ये दोनों मिलके था पाकिस्तान। 71 में तो बांग्लादेश स्वाधीन हो गया विद द हेल्प ऑफ इंडियन आर्मी। तो बांग्लादेश थोड़ा ग्रेटफुल होना चाहिए था ग्रेटफुल टिल रिसेंटली। अभी क्या हुआ गया पता नहीं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन मैं सुनता हूँ, कितना सच कितना पता नहीं, आप लोग को जांच करना है। तो अमेरिका बैकिंग और चाइना बैकिंग और इधर से वेस्ट से पाकिस्तान का बैकिंग लेके उन लोग चाहता है नॉर्थ ईस्ट को बांग्लादेश में शामिल करो, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो जाएगा, आप नॉर्थ ईस्ट के साथ हैं कि नहीं वो भी बताइए मुझे। ऐसा कुछ होगा तो किसी ने कॉन्स्पिरेसी करके नॉर्थ ईस्ट को लेना चाहते, जैसे 1962 में हुआ था। आप लोग सभी का नॉर्थ ईस्ट के साथ होना चाहिए, तभी तो हम ऐसे एक देश है और एक नेशन है, ऐसा हमारा मालूम नॉर्थ ईस्ट का पीपल का मालूम आएगा। दे विल बी कन्विंस्ड दैट होल इंडिया, मेनलैंड इंडिया सबसे बड़ा है, इससे हिसाब से नॉर्थ ईस्ट तो बहुत छोटा है। तो आप लोग छोड़ देंगे, बाकी मेनलैंड इंडिया तो नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश ले लेगा। आप लोग फाइट करेंगे तो ले नहीं सकता। तो हमारा मेनलैंड के
इंडियन के ऊपर, भारतीय के ऊपर यही भरोसा है, उन लोग को भी नॉर्थ ईस्ट को जैसे 62 में हुआ था ऐसा नहीं करेगा है। सो ड्यूरिंग पार्टीशन ऑल्सो, ड्यूरिंग पार्टीशन some people tried their best to include Northeast Assam. That time mostly it is called Assam, including Arunachal, Mizoram. That should be part of Pakistan. That time it was based on Pakistan and Bharat, India. So some people tried to have Northeast with Pakistan, East Pakistan that time. लेकिन हमारा जो फर्स्ट सीएम गोपीनाथ बरदলৈ बहुत बार उनको भारत रत्न दिया, बहुत बार रिसेंटली he was the stalwart in North Assam का, he fought a lot, consulted Mahatma Gandhi, all these things, history हो गया. Because of him we are grateful to him, because of him today Assam and Northeast with mainland India. नहीं तो 78 किलोमीटर से गला बोतल नेक जो चिकन नेक है ना, इसको काट के तो बांग्ला पाकिस्तान ले जाता था, ठीक है, जैसे पीयू के ले गया, उस टाइम थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसलिए तो पीयू के पाकिस्तान चला गया. ऐसे भी नॉर्थ ईस्ट आसाम पाकिस्तान के साथ जाने वाला था, बट बिकॉज ऑफ गोपीनाथ बरदলৈ हमारा सौभाग्य है, उनके लिए नॉर्थ ईस्ट आज भारत के मेनलैंड के साथ है, ठीक है. सो मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, ये तो है, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर माई फीलिंग विथ ऑल ऑफ यू. मैं चाहता हूँ नॉर्थ ईस्ट को भी मत छोड़िए, इसलिए तो मैं मिजोरम से इतना दूर से ईस्ट एंड वेस्ट जयपुर इसलिए से भेजा. देश को जोड़ो, यू थिंक अबाउट हाउ टू कनेक्ट द कंट्री. सो आपको ही बताता हो, आप लोग भी नॉर्थ ईस्ट आइए, स्पेशली इन द नॉर्थ ईस्ट मिजोरम इज वन ऑफ द यूनिक स्टेट, वेरी अच्छा है, पूरा स्टेट इज हिली स्टेट, बहुत अच्छा लगेगा आपको. एक बार कम से कम आइए, देख लीजिए कैसा ब्यूटीफुल, कैसा पीसफुल स्टेट है. मैं तो बोला था मिनिमम क्राइम इन द आइजॉल, पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है, छोटा सा स्टेट है, इसका पॉपुलेशन एग्जैक्टली तो नहीं है, अराउंड 15 लाख ओनली. एक वन पार्ट ऑफ जयपुर होगा, जयपुर का पॉपुलेशन कितना होगा, ओनली 15 लाख होल स्टेट, मे बी 5-7 लाख होगा इन आइजॉल सिटी पे. And last Saturday on 13th of September, the first rail line was inaugurated by Honorable Prime Minister Modi ji on last 13 September ko, that is connecting Assam border with Aizawl city, only 51 kilometer long railway track, single track. ऑन 51 किलोमीटर में आपको क्या सरप्राइजिंग क्या है पता है, 51 किलोमीटर में 48 टनल्स है. एंड मुझे पेपर से पढ़ा था 88 ब्रिजेज है, छोटा बड़ा ब्रिज. तो मान लीजिए कैसा रेल ट्रैक होगा, 48 टनल्स, 88 छोटा बड़ा ब्रिज है. सो कितना एंजॉयबल होगा, आप थोड़ा सा जाएगी ना. सो इसका जो हाईएस्ट ब्रिज होता है, मैं उस ब्रिज के नीचे गया था, जो फॉर व्हीकल के लिए रोड है, रास्ता में 10 जाने से मैं इसे देखा था. द हाईएस्ट पिलर इज आई हैव रेड, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 165 meters tall. And I don't know what is the height. Somebody wrote in the paper, it is taller than Qutub Minar in Delhi. इतना लंबा है. तो एक लेडी हमारा यूनिवर्सिटी में आया था दिल्ली से, वो बोला था इसे देख के, मैं ट्रेन में कभी नहीं आऊंगा, इतना आसाम में ट्रेन है, वो गिर जाएगा तो क्या होगा. तो आप ऐसे बोलने से, मैं बोला था आप ऐसे बोलने से आप प्लेन पे भी नहीं जा सकता. वो तो 165 मीटर है, प्लेन तो 10 किलोमीटर ऊपर से चलता है,
तो गिर जाएगा तो कौन बचेगा, तो ये डेस्टिनी है। तो मत सोचिए, ये बोला है थोड़ा ब्रीफली, बहुत अच्छा स्टेट है। मिजोरम पे आइए, यूनिवर्सिटी देख लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। एंड लास्टली आप लोग को याद होगा, टुडे इज द बर्थडे ऑफ आवर ऑनरेबल पीएम नरेंद्र मोदी जी, 17th September 17 सितंबर हिज बर्थडे। आपका साथ मैं उनको बधाई देता हूँ। आई कांग्रेचुलेट हिम ऑन हिज बर्थडे ऑफ टुडे एंड आई फील हैप्पी टू शेयर माय फीलिंग विथ ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद। सर आपका बाकी अभी 3 मिनट और बाकी है, असमीज का 3 मिनट बाकी है। असमीज असमिया क्या बात कीजिए। অসমীয়া ভাষাটোৰ বিষয়ে আপোনালোকে কিমান জানে মই নাজানো। যোৱা বছৰ মাত্ৰ অসমীয়া ভাষাটোক পৌৰাণিক ভাষা, ক্লাছিকেল লেংগুৱেজৰ চিনাকি পৰিচয় দিয়া হৈছে। উৰিয়া, বেংগলী, মাৰাঠা, এই তিনিটা ভাষাৰ লগতে অসমীয়া ভাষাটো ক্লাছিকেল লেংগুৱেজৰ মৰ্যাদা দিয়া হৈছে। অসমীয়া ভাষাটো বহুত পুৰণা ভাষা, এণ্ড ইয়াৰ নিজস্বতা আছে। আৰু অসমখনেই হৈছে কি বুলি কওঁ, গেটৱে টু নৰ্থ ইষ্ট। গেটৱে অসম, গুৱাহাটী ইয়াৰ ৰাজধানী। এই গুৱাহাটীখন হৈছে পুৰা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ গেটৱে, দুৱাৰমুখ, দ্বাৰ। অ'কে অ'কে, থেংক ইউ ভেৰি মাছ। আৰু এটা কথা, আৰু দুটা কথা যোগ কৰোঁ। অসমীয়া বুলিলে বিহু, বিহু হৈছে অসমৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় ফক ফেষ্টিভেল, দ্য most recognized and important festival in Northeast in Assam is বিহু। আৰু এটা কথা কওঁ, আপোনালোকে you will see sometimes মোদীজী ইধৰ এক গামোচা লেতে, অসমীয়া গামোচা, ইয়াৰে GI টেগ আছে। এছামিজ গামোচা হেজ এ GI টেগ। কেতিয়াবা কেতিয়াবা আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে গলত এখন ৰঙা আৰু বগা ৰঙৰ এটা কাপোৰৰ পিচ লয়, সেইটো হ'ল কয় গামোচা। That is a very important piece of cloth to honor somebody. So বিহু আৰু গামোচা আপোনালোক আটাইয়ে মনত ৰাখিব। বহুত ধন্যবাদ।